previous class, we have discussed about different types of biomolecules. We have discussed about carbohydrates, proteins, lipids and nucleic acids. We have studied both the forms, that is micromolecules as well as macromolecules. In the last lecture, we had discussed about the nucleic acid DNA and said that the DNA is the genetic material in all the organisms. So obviously this biomolecule will be present in all organisms except riboviruses, which are the viruses which have RNA as a genetic material. We have so far discussed about various characteristics of the structure of DNA, the dimensions of the DNA, the nucleotides that are present in the DNA and how they will be arranged was discussed by us in the previous class. Today we are beginning with a new topic in this chapter, and that is the dynamic state of body constituents, which is the concept of metabolism. Students, हमें पता ही है कि हमारी बॉडी में या तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, whether it is bacteria or it is a virus or whether it is a protozoan or it is a human, right? हर एक ऑर्गेनिज्म में ये बायोमोलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं. You cannot deny that some organisms do not have carbohydrates, right? It's never possible like this. Every organism which is existing in this world will be having different types of biomolecules. The concentration of these biomolecules is more or less fixed in every organism. अगर हम हमारी बात करते हैं तो हमारी बॉडी में लेवल ऑफ प्रोटीन, लेवल ऑफ शुगर्स, राइट, ये सारी चीजें जो होती है वो नियरली फिक्स्ड होती है. थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, फ्लक्चुएशंस होते हैं, बट अगेन इट ट्राइज टू मेंटेन इट्स कांस्टेंट वैल्यू. सो व्हाटएवर, whether there is increase in the amount of sugars for a short time, after a duration of 2 or 3 hours, the level of the sugar is again brought down in our body. So we are trying to say that every micro or macromolecule which is present in our body is having a fixed concentration. And these biomolecules are never steady, but they are constantly changing into some other biomolecule and they are being made from some other biomolecules. मतलब जब हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी में शुगर है, राइट, तो शुगर है मतलब we are having glucose also. When the level of glucose increases, what will happen? Glucose will change to glycogen and get stored in liver. What will happen when the sugar level decreases in our body? Glycogen will again change back to glucose and therefore increase your blood sugar level. तो हमारी बॉडी में ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो हो रहा है, जैसे कि ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन टू बैक ग्लूकोज. प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन से बनता है एमिनो एसिड और ऐसे ही एमिनो एसिड के कॉम्बिनेशन से वापस बनता है प्रोटीन. सो दिस ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन the molecules, the organic chemical substances is constantly going to occur. और ये जो transformation होता जाएगा, that will be very much important for our body. This change in biomolecules, right, to some other biomolecule and again changing back to some other biomolecule is a continuous series of events which keeps on going in our body. And this constant changes are known as the dynamic state of body constituents. तो हम इसी चीज को थोड़ा elaborate way में यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम मेंशन करते हैं that all living organisms have different chemical substances. Here we are talking about different organic substances, right? हमारी बॉडी में कई तरह के organic substances होते हैं. इन organic substances में सब कुछ आ गया.
एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स आ गए, उसमें मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, लिपिड सब कुछ आ गया, राइट। तो हमारे पास ऐसे बहुत से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, वेदर इट इज बैक्टीरिया और अ प्रोटोजोआ और एन एनिमल, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, all living organisms will be having different chemical substances। अब ये chemical substances अलग अलग होंगे, किसमें? बैक्टीरिया हो तो भी होंगे, प्रोटोजोआ हो तो भी होंगे, और अगर एनिमल है या ह्यूमन है तो भी ये chemical substances present होंगे। These chemical substances are present in a particular concentration in our body। So these chemical substances have nearly fixed concentration in the body, which is expressed as moles or moles per liter। कैसे एक्सप्रेस किए जाते हैं? आइदर मोल्स, आइदर मोल पर लीटर। तो हमारी बॉडी में बहुत तरह के केमिकल सब्सटेंसेस हैं और ये सारे ही केमिकल सब्सटेंसेस का कंसंट्रेशन जो है वो नियरली फिक्स्ड होता है। दो वी हैव अ कांस्टेंट इनटेक ऑफ फूड, हम हर रोज खाना खाते हैं, राइट, बट ऐसा कभी नहीं होता कि हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा प्रोटीन्स हो गए और बाकी सारे सब्सटेंसेस कम हो गए। नो, एवरी सब्सटेंस इज ट्राइंग टू मेंटेन इट्स ओन कंसंट्रेशन। शुगर है तो शुगर का भी फिक्स्ड कंसंट्रेशन होता है, वेदर इट इज फास्टिंग शुगर, मतलब फास्ट किया है और शुगर लेवल है, या तो खाना खाने के तुरंत बाद शुगर का लेवल है। ये दोनों लेवल फ्लक्चुएट तो होते हैं पर ये दोनों लेवल जो है वो मोर और लेस फिक्स्ड होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक केमिकल सब्सटेंस का कोई फिक्स्ड कंसंट्रेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर। ये बायोमोलिक्यूल्स कभी भी स्टेडी नहीं होते, ये कॉन्स्टेंटली चेंज होते हैं इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल। सो these biomolecules always change to form other substance which also changes or they are made up from other organic substance, right? क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो बायोमोलिक्यूल है, जैसे कि हमने कह दिया प्रोटीन, ठीक है, तो ये प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी में एज इट इज उसी फॉर्म में रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है। ये प्रोटीन थोड़ी देर में चेंज हो जाएगा टू सम अदर एमिनो एसिड जिसकी सेल को जरूरत है। हमारी बॉडी में एंटर हुआ वो ग्लूकोज है, पर ग्लूकोज उसी फॉर्म में नहीं रहता। इन सम टाइम व्हाट विल हैपन, द ग्लूकोज विल चेंज टू glycogen or the glucose will change to fructose or the glucose will combine with the another glucose to form maltose, और ऐसे changes होते जाते हैं और यही सारे changes जो हैं ये constantly होते जाते हैं। मतलब हमारी बॉडी में बायोमोलिक्यूल्स का लेवल वेरी इसीलिए होता है क्योंकि the biomolecules are always changing to form some other biomolecule which indeed will be further changing to some other biomolecule. So this series of changes is going to continue in our body, and these changes involve breakdown and formation of new bonds, right? So this involves breakdown and formation of new bonds to form different biomolecules, and such type of reactions
आर नोन एज मेटाबॉलिक रिएक्शंस। इन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। मतलब बायोमोलिक्यूल जो है वो एक बना, उसके ब्रेकडाउन से कुछ और बना, उसके ब्रेकडाउन या सिंथेसिस या किसी के और के साथ यूनाइट होने पे कोई और थर्ड नया सब्सटेंस बन रहा है। तो ऐसे जो फ्लक्चुएटिंग चेंजेस हैं ये चलते रहते हैं, जिसमें कई बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और कई नए बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। तो ये ब्रेकडाउन और फॉर्मेशन का जो चेंज आता रहता है, इन्हें हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मेटाबॉलिक रिएक्शंस होने की वजह से कई सारे नए सब्सटेंसेस बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एमिनो एसिड रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ अमाइन। एमिनो एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिमूव कर देते हैं, COO को रिमूव कर देते हैं, तो क्या जो बाकी का स्ट्रक्चर रह जाता है वो बन जाता है अमाइन, राइट? हमारी बॉडी में दूसरा डाइसैकेराइड जो है उसका ब्रेकडाउन होता है, तो इट रिजल्ट्स इनटू ब्रेक्स टू फॉर्म मोनोसैकेराइड। डाइसैकेराइड का अगर ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनेगा? मोनोसैकेराइड। तो ये एक ऐसा चेंज हो गया जो डाइसैकेराइड से मोनोसैकेराइड कन्वर्जन हो गया। अब बात ये है कि ऐसे रिएक्शंस तो चलते रहते हैं, राइट? तो ऐसे रिएक्शंस जो चलते रहते हैं, क्या वो आइसोलेटेड होते हैं? मतलब एक टाइम पे एक ही रिएक्शन होता है? नो। Multiple reactions are going on at the same time and the product of one reaction is maybe used up for some other reaction, right? तो यहाँ पे एक टाइम पे ये एक ही रिएक्शन सेल में हो रहा है ऐसा जरूरी नहीं है। एक टाइम पे एक से ज्यादा रिएक्शंस भी होते जाते हैं और मे बी यहाँ पे बना हुआ जो प्रोडक्ट है वो शायद कोई और रिएक्शन में कहीं और जगह पे सेल में यूटिलाइज हो रहा है। सो वी आर ट्राइंग टू से दैट these chemical reactions do not occur in isolation. Instead, they are forming the products which are used at other place in the cell or you can say in the body. तो ये जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, वो कभी भी सिंगल होते नहीं। ये मेटाबॉलिक रिएक्शन ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे सेल में एक रिएक्शन हो रहा है मतलब वो स्टॉप होगा फिर जाके दूसरा रिएक्शन होगा, नहीं। यहाँ पे एक जो रिएक्शन हो रहा है उससे लिंक्ड कई सारे रिएक्शंस है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना पाइरुविक एसिड में। अब ये पाइरुविक एसिड चाहे तो it can convert to lactic acid. This pyruvic acid can enter into the oxidative phosphorylation and result into formation of ATP. This pyruvic acid can be used up at some other place to form some other biochemical compound. तो सब्सटेंस एक ही था पाइरुविक एसिड, पर वो यूटिलाइज अलग अलग तरह पे हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो काफी लिंक्ड होती है एंड देयर इज सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस, राइट? सो देयर इज सीरीज ऑफ सच केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस। एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन है जो हो रही है और इस सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस को क्या कहते हैं? डायनामिक स्टेट कहते हैं। डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स क्या कहा जाता है? डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स। और ये सारी रिएक्शंस जो है वो इंटरलिंक्ड होती है। रिएक्शंस आर इंटरलिंक्ड। इंटरलिंक्ड मतलब एक की प्रोडक्ट
जगह पे यूटिलाइज हो रही है, लाइक दैट इंटरलिंक. So this resembles, ये अब मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ, when you come across your textbook you will be able to understand that as many reactions are occurring together there is a metabolic traffic between the molecules. Just like रोड पे कई सारे व्हीकल्स होते हैं तो ऑटोमोबाइल्स का ट्रैफिक हो जाता है, राइट, ऑल ट्रैवलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, राइट. एक जो है वो स्ट्रेट आ रहा है, एक टर्न ले रहा है. सो देयर इज मल्टीपल वेज इन विच द रिएक्शन इज गोइंग टू अकर. हेल्दी कंडीशंस तब कहलाएंगी जब ये रिएक्शंस कॉन्स्टेंटली चलते रहे विदाउट एनी मिसहैप, मतलब कोई भी गड़बड़ होने के बिना अगर ये रिएक्शंस हमारी बॉडी में स्मूथली चल रहे हैं तो हमारी बॉडी की कंडीशंस कैसी हैं, हेल्दी है. पर अगर ये रिएक्शंस में कुछ एक जगह पे गड़बड़ हो गई तो बाकी के कई सारे रिएक्शंस जो है वो अटक जाएंगी और therefore there will be a metabolic traffic that is being observed. और हर एक केमिकल सब्सटेंस का दूसरे केमिकल सब्सटेंस में कन्वर्ट होना इसे कहा जाता है टर्नओवर. इट इज नोन एज टर्नओवर. सो एवरी केमिकल कंपाउंड हैज अ स्पेसिफिक टर्नओवर. या टेक्स्ट बुक में से लिखना व्हाट इज टर्नओवर. टर्नओवर इज one chemical compound is going to transform into another chemical substance and there is a rate at which it is going to change. This change of the chemical compound to form some new compound is known as the turnover, right? तो turnover जो है वो बायोमोलिक्यूल्स की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. Moreover, ये जो chemical reactions हो रहे हैं these all reactions are catalyzed reactions. The metabolic reactions or you can say chemical reactions are कैसे होते हैं ये chemical reactions? Catalyzed. Catalyzed मतलब they occur in presence of enzyme. Whether it is a very simple process like CO2 का डिसॉल्व होना पानी में, ये एक फिजिकल प्रोसेस है, राइट. O2 का कंबाइन होना हीमोग्लोबिन के साथ, ये एक प्रोसेस है. पर ये सारी ही प्रोसेस हमारी बॉडी में कैसे रेगुलेट होती है? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स. एंजाइम्स आर दोज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स व्हिच विल इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन. They will increase the rate of the reaction without getting involved in it. मतलब अंदर इन्वॉल्व हुए बिना ही ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं. तो वो होते हैं एंजाइम. हमारी बॉडी में ऐसी कोई भी रिएक्शन नहीं है जो अनकैटलाइज्ड हो. सारी ही रिएक्शन में एंजाइम इन्वॉल्व होता ही है, भले ही वो डाइसैकेराइड का ब्रेकडाउन हो इनटू मोनोसैकेराइड. डाइसैकेराइड इनटू मोनोसैकेराइड, सिंपल रिएक्शन जिसमें पानी का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, राइट. तो ऐड हो जाएगा. तो ये सिंपल रिएक्शन है पर फिर भी ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगी? एंजाइम के प्रेजेंस में, राइट. तो ये रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? कैटलाइज्ड रिएक्शन. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको समझने हैं. पहले तो ये बात कर लेते हैं कि कोई भी दुनिया में ऑर्गेनिज्म हो, हर एक के पास ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते ही हैं, बायोमोलिक्यूल्स होते ही हैं. ये बायोमोलिक्यूल्स का कोई स्पेसिफिक कंसंट्रेशन होता है सेल के अंदर जिसे हम मोल्स पर लीटर में एक्सप्रेस करते हैं. ये बायोमोलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली चेंज होते हैं टू फॉर्म सम अदर बायोमोलिक्यूल विद इन द सेल. दे चेंज टू फॉर्म सम अदर सब्सटेंस which in turn changes to form some other substance or it will be made from some other substance. किसी और में से शायद ये बना है या किसी और में शायद ये चेंज होने वाला है. और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है टर्नओवर. टर्नओवर मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ बायोमोलिक्यूल टू सम अदर बायोमोलिक्यूल. So it involves breakdown and formation of new bonds and these type of reactions are called metabolic reactions. भले ही मेटाबॉलिक रिएक्शन बहुत ही सिंपल हो, जैसे कि CO2 का रिमूव होना फ्रॉम एमिनो एसिड तो बनता है अमाइन. डाइसैकेराइड का ब्रेक होना तो फॉर्म ऑफ मोनोसैकेराइड. ये रिएक्शंस भले ही होते हो पर ये रिएक्शंस जो हैं ये सारे रिएक्शंस को क्या कहा जाता है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस. ये केमिकल रिएक्शंस आइसोलेशन में मतलब सिंगल
there is a huge traffic of metabolic reactions occurring together in the cell. Just like vehicles का ट्रैफिक रोड पे होता है, वैसे ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का ट्रैफिक हमारी बॉडी में होता है, क्योंकि एक साथ कई सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, एक सब्सटेंस ब्रेक होके नया बन रहा है, वहीं पे कुछ और ये नया बना हुआ सब्सटेंस कहीं और पे यूज हो रहा है. So there is a series of biochemical reactions taking place. This series of biochemical reactions which are taking place is known as the dynamic state, because reactions are all interlinked to each other. हमारी बॉडी में होने वाली हर एक केमिकल रिएक्शन कैटलाइज्ड होती है, जो एंजाइम के प्रेजेंस में ही होती है और एंजाइम के एब्सेंस में नहीं हो सकती. राइट? तो that was about the dynamic state of body constituent concept of metabolism. Further we will talk about some more metabolic reactions and the living state in the living organism.